So, welcome back. We are studying the chapter Human Reproduction, and we have started with male reproductive system. In earlier lecture, that is a previous lecture, we talked about scrotum, testes, and in this lecture, we will talk for duct system. तो सर आपने कहा कि चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हमारा टाइटल शुरू है। इसके पूर्व हमने दो ऑर्गन विस्तार से देखे, स्क्रोटम और टेस्टिस, और अभी इस लेक्चर में हमारी बात होगी डक्ट सिस्टम इन डिटेल, पेनिस अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. So, what is duct system? You may call it as accessory male ducts. These are basically meant for gamete transport. So, duct system or accessory male ducts are made for gamete transport, that is from testes to outside the body. It include 5 duct. So they are vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct, and the last urethra. So these 5 duct constitute a duct system, and the purpose is transport of the male gamete from testis to outside the body. So let us start one by one. So vasa efferentia cannot be properly taught unless we look at the longitudinal section of the testis. तो सर तुम्ही म्हणता की तुम्हाला डक्ट सिस्टम आता शिकवायची आहे. पहिली डक्ट आहे व्हासा इफ्रेन्शिया, आणि व्हासा इफ्रेन्शिया समजण्यासाठी आपल्याला टेस्टिसचा वर्टिकल कट, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन घ्यावा लागेल. तो आपका कहना है कि वासा इफ्रेंशिया को अच्छे से समझना है, तो एक घड़ी भर के लिए हम लोग दूर जाएंगे और ह्यूमन टेस्टिस का एलएस स्टडी करेंगे. देन वी कुड हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वासा इफ्रेंशिया, एंड इट इज अगेन benefited because our next title, upcoming title, is histology of testis. At that time also we have to take that LS. So this is, we are taking the longitudinal section of the testis. Suppose a testis is held in a left hand and it has been given by the sharp blade a vertical cut or longitudinal section, and if we see inside, what is there inside the human testis? So look at this picture. So human testis is externally covered with tunica vaginalis, which is peritoneal in origin. That confirm abdominal origin of the testis. तो सर टेस्टिस को खड़ा कट करने के पश्चात सबसे बाहर उसको जो एक पार्शियली कवर किया हुआ है वो एक पेरिटोनियल कवर है जिसका नाम है ट्यूनिका वैजिनालिस, और ये प्रूव करता है, साबित करता है कि टेस्टिस एब्डोमिनल ऑर्गन है. द सेकेंड कवर is made up of connective tissue, and this connective tissue cover of the testis, a complete cover of the testis, is tunica albuginea. Remember,
Tunica albigenia, a connective tissue cover, send inside many partitions or septa and divide the testis into 200 to 300 compartment called testicular lobules. तो सर ट्यूनिका अल्बेजेनिया जो कनेक्टिव टिश्यू का कंप्लीट कवर है टेस्टिस का, उसमें से कई सारे पार्टीशंस निकले और इन पार्टीशंस ने टेस्टिस की कैविटी को 200 से 300 कप्पों में बांट दिया और हर कप्पे को कहते टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ऐसे कितने कप्पे हैं? 200 टू 300। Now see, the inner cover which is richly vascularized is called tunica vascularis। तो अब एक बात पक्की कर लो कि टेस्टिस को कोई खड़ा कट करके अगर अंदर देखे उसकी एनाटॉमी, तो उसको 3 कवर है। द आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वैजिनालिस, the second one is tunica albigenia, third one is tunica vascularis. Tunica albigenia, a connective tissue cover that produces many partitions inside and divide the cavity of testis into 200 to 300 compartment called testicular lobules. अब हमारा स्टडी आसान हो गया। कैसे? देखो, जो कुछ भी होगा इन वन लोब्यूल वही सब होगा इन अदर लोब्यूल्स। जैसे एक फैन वैसे सारे फैन, जैसा एक नेफ्रॉन वैसे सारे नेफ्रॉन। तो हमें फोकस करना है कोई भी एक लोब्यूल। म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की टेस्टिसच्या 200 ते 300 कंपार्टमेंट आहेत आणि जे काही एका कंपार्टमेंटमध्ये असेल तेच इतर कंपार्टमेंटमध्ये असेल। सो ईच testicular lobule contain highly coiled wire-like structures, and these highly coiled wire-like structures are called seminiferous tubules. So how many seminiferous tubule might be there in a one compartment? So it is 1 to 3. Let us consider 3. सो अशा कॉईल वायर लाईक स्ट्रक्चरला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल म्हणतात. मग एका कप्प्यात किती असतात? तर 1 ते 3 असतात. आपण 3 गृहीत धरू. तो इफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर 3 इन वन कंपार्टमेंट, सो इन 200 दे विल बी 600 and in 300 compartment 900. And hence previously I told you that testis is nothing but the coiled mass of 600 to 900 seminiferous tubule. एक कप्पे में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो 200 में हो गए 600 और 300 है तो 900। अच्छा, तो these are the seminiferous tubule. In these coiled wire spermatogenesis takes place. मतलब हम लोग जो बोलते कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वास्तव में वो स्पर्मेटोजेनेसिस हर उस वायर के अंदर होता है जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. रिमेंबर, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉइल्ड बट देयर एंड्स आर स्ट्रेट. मतलब ये जो 600 से 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो तो कॉइल है, पर उनके एंड मात्र स्ट्रेट है. एंड ऑल द स्ट्रेट एंड्स एनाटोमाइजेस इन ईच अदर, माने दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. म्हणजे सगळ्यांचे जे एंड असतात ते स्ट्रेट असतात, हो, आणि ते एकमेकात असे नेटवर्क फॉर्म करतात, म्हणजे एकत्र उघडतात. And this is that network in which every seminiferous tubule opens, and this network is called retetestis. म्हणजे तर सर आता असं झालं की प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलमध्ये जे स्पर्म बनतील तर ते रेटेटेस्टिसमध्ये जमा होतील. दॅट्स राईट. So from 600 to 900 seminiferous tubule, the sperms are actually poured into the retetestis. Now,
from rete-testis arises 12 to 20 fine, tiny ductules, and these 12 to 20 fine, tiny ductules that starts from rete-testis and came outside the testis are called vasa efferentia. तो vasa efferentia are fine, tiny ductule, 12 to 20 in number, that starts from rete-testis and they rejoin to form epididymis. Yeah, they opens in epididymis. Sir, you said that these vasa efferentia are coming out of the testis, so they have to pierce tunica albuginea. ट्यूनिका अल्बेजिनिया को चीर के उन्हें बाहर निकलना होगा. तो चलो हमें समझ में आ गया व्हाट इज वासा इफ्रेंशिया. तो वासा इफ्रेंशिया आर फाइन, टाइनी डक्ट्यूल्स. दे आर 12 to 20 in number. They start from rete-testis. Rete-testis is present on backside of the testis. They start from rete-testis and they open in epididymis. करते क्या है सर? दे पिक अप द स्पर्म्स फ्रॉम rete-testis and they pour the sperm in epididymis. अब यहां पर नीट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे इफ फॉर रीजन द वासा इफ्रेंशिया आर कट द रिझल्ट विल बी. म्हणजे नीटमध्ये असा प्रश्न एकदा विचारला होता की जर वासा इफ्रेंशिया कट झाल्या तर काय होईल. अगर वासा इफ्रेंशिया कट हुई तो स्पर्म टेस्टिस के बाहर नहीं निकलेंगे. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू नो द एनाटॉमी. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते. अनदर इज, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि ट्वाइस द क्वेश्चन वॉज द करेक्ट पैसेज जर्नी ऑफ द स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज. तो वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा. दैट वॉज वंस आस्क्ड. इन नेक्स्ट टाइम वन हैज टू स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो आता क्लिअर झाला डाऊट की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मधले स्पर्म कुठे येतात? रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस मधले कुठे जातात? वासा इफ्रेंशिया. आणि मग ते कुठे जमा होतात? एपिडिडायमिस. सो दॅट फिनिशेस वासा इफ्रेंशिया. पहला पॉइंट, वासा इफ्रेंशिया आर फाइन डक्ट्यूल्स 12 to 20 in number. They start from rete-testis and opens in epididymis. They pierce through tunica albuginea to came out the testis. They carry the sperm from rete-testis to epididymis. Now, second duct is epididymis. सुनो. So these are vasa efferentia. So, a very long, highly coiled tube present on periphery of testis like a quama is epididymis.
So this was to be simplified so that you could have a good understanding of epididymis. However, it looks somewhat like this. So this is testis and this is epididymis, like this. So it is somewhat like a quama on periphery of testis. So first point in epididymis, a very long, highly coiled tube present on periphery of testis like a C alphabet or quama is epididymis. The length of epididymis is 6 meter or 20 feet. म्हणजे ही जी एपिडिडायमिस आहे याची लांबी किती आहे? 6 मीटर म्हणजे 20 फीट लेंथ. तो सर 20 फुट? यस. जो जैसे घर का दरवाजा होता है वो 7 फीट होता है, तो लगभग उसके 3 गुना. तो एपिडिडायमिस इज 6 मीटर और 20 फीट. पण सर टेस्टिस तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पे 20 फीट वायर कैसे रखा? सो दैट्स वाई इट इज हाईली क्वाइल्ड. सो अ वेरी लॉन्ग एंड हाईली क्वाइल्ड ट्यूब on outer periphery of testis like a C alphabet or comma is epididymis. It is 6 meter or 20 feet in length. Third point, epididymis is divided in 3 parts: head or caputa, body or corpus, and quada, that is a tail. So this is a head, caputa. This is a body, corpus, and this is a tail, quada. So caputa epididymis, corpus epididymis, quada epididymis, and quada epididymis leads to वासा डिफरन्शिया. म्हणजे शेवटचा जो पोर्शन आहे एपिडिडायमिसचा ज्याला क्वाडा म्हणतात तिथून सुरू होते वासा डिफरन्शिया किंवा स्पर्मॅटिक डक्ट. फोर्थ पॉइंट, एपिडिडायमिस stores the sperm. The sperm get mature there and they are nourished there. मतलब एपिडिडायमिस का काम है स्पर्म को स्टोर करना, मैच्योर करना, नरिश करना, और फिर एट कोइटस, इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट, फ्रॉम द क्वाडा एंड द स्पर्म्स असेंड्स अप इन स्पर्मेटिक डक्ट. सो इट हेल्प टू कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम वासा इफ्रेंशिया टू वासा डिफरन्शिया. म्हणजे सर ही एपिडिडायमिस स्पर्मला स्टोअर करते, मॅच्युअर करते, नरिश करते, आणि वासा इफ्रेंशियाने आणलेले स्पर्म वासा डिफरन्शियामध्ये ट्रान्सपोर्ट करते. सो दिस इज एपिडिडायमिस. सो इट इज अ व्हेरी लॉन्ग अँड हायली कॉइल्ड ट्यूब ऑन outer periphery of testis. It is some 6 meter or 20 feet in length. It has 3 parts: caputa, head, corpus, body, quada, tail. It matures the sperm, nourishes the sperm, stores the sperm, and transport them into vas deferens or spermatic duct. Now, vasa differentia. अब ध्यान दो, now this is scrotum containing pair of testes. This is epididymis and these are
वासा डिफरन्शिया. तो वासा डिफरन्शियालाच म्हणतात स्पर्मॅटिक डक्ट. तो अ पेअर ऑफ मस्क्युलर ट्यूब्स, अ पेअर ऑफ मस्क्युलर ट्यूब that starts from quada epididymis, last part of epididymis, that starts from quada epididymis, ascends up through inguinal canal and enters in abdomen, and near the bladder they form the loops, and they receive a duct from seminal vesicle, and then they form the ejaculatory duct. So first point, vasa differentia are pair of muscular tubes, starts from quada epididymis, ascends up through inguinal canal in abdomen, and near bladder it forms the loop, and on their way they receive a duct from seminal vesicle, and then they become a ejaculatory duct. Second point, what is the length of vasa differentia? It is 30 to 40 centimeter, माने 1 फीट से 1.25 फीट. So it is 30 to 40 centimeter in length. तो ये वासा डिफरेंशिया स्क्रोटम में से एब्डोमेन में चढ़ती, तो गिरती क्यों नहीं? वो तो मस्कुलर ट्यूब है. तो सुनो, एब्डोमेन में टेस्टिस बने थे. हाँ सर, आपने कहा था पिछले लेक्चर में कि पेयर ऑफ टेस्टिस आर फॉर्म्ड इन एब्डोमेन एंड दे डिसेंड थ्रू इंग्वाइनल कैनाल इनटू स्क्रोटम. तो जब वो नीचे आए थे फिर भी वो कनेक्टेड है विथ एब्डोमेन बाय स्पर्मैटिक कॉर्ड, डक्ट नहीं. सो दीज टेस्टिस आर कनेक्टेड टू एब्डोमेन वाया स्पर्मैटिक कॉर्ड और मेसोर्चियम. और वो जो मेसोर्चियम या स्पर्मैटिक कॉर्ड है उसके अंदर से रहती है वासा डिफरेंशिया. आई विल एक्सप्लेन, आई विल सिंप्लीफाई. मान के चलो कि एक केबल है, कॉर्ड है, और किसी केबल में देखो 3 वायर रहते. वो केबल का कोटिंग रहता और अंदर 3 वायर्स रहते. जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक आयर्न होगा प्रेस, तो त्याचं जे कॉर्ड असतं उसमें भी 3 वायर है. तो वैसे मान के चलो कि 2 केबल्स है एब्डोमेन टू स्क्रोटम, उन्हें कहो मेसोर्चियम. और उस केबल के अंदर ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व्स, एंड उसी में ये वासा डिफरेंशिया रहती. सो दे आर सपोर्टेड बाय स्पर्मैटिक कॉर्ड. तो पहला पॉइंट काय होता? तो सर, पेयर ऑफ मस्क्युलर ट्यूब्स विच स्टार्ट फ्रॉम क्वाडा एपिडिडायमिस, ascends up through inguinal canal. In abdomen near bladder they form a loop, and they receive a duct of seminal vesicle and form a ejaculatory duct. Such a pair of tube is called vasa differentia. It is 30 to 40 centimeter in length. On its way it is supported by mesorchium, cable, या spermatic cord. Next, these vasa differentia carries the sperm. Vasa differentia carries the sperm from epididymis to urethra. सर, वासा डिफरेंशिया म्हणजे स्पर्मॅटिक डक्ट. स्पर्म कॅरी करतात एपिडिडायमिस मधून युरेथ्रामध्ये. कसं काय? वाया इजॅक्युलेटरी डक्ट, वाया इजैकुलेटरी डक्ट. अब सुनो, 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें आएगा एक स्टरिलाइजेशन टेक्निक
या परमनंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन called vasectomy. So vasectomy means it is a way to block the gamete transport in male to prevent any further issues, childs. तो अगर ये कोई कपल है and they have enough number of children and now they don't want to issue permanently. Now which contraceptive method, a terminal method is suggested for the male? So it is vasectomy. म्हणजे एक पती पत्नी आहे, एक दाम्पत्य आहे आणि त्यांना 2 मुलं बाळं आहेत आणि त्यांना आता असा विचार आहे की नको आता मूलबाळ, तर मग परमनंट बाळाचा जन्म रोखण्याची जी मेथड असते, पद्धत असते, तर ते पुरुषासाठी व्हॅसेक्टोमी असते आणि त्या माऊलीसाठी असते ट्युबॅक्टॉमी. तो व्हॅसेक्टॉमी म्हणजे काय? तो वासा डिफरेंशिया आर कट एंड कटेन्स आर सील्ड. टू बी सिंप्लीफाइड मैंने किया. सो वासा डिफरेंशिया आर कट एंड कटेन्स आर सील्ड by giving a little puncture on scrotum. This is called vasectomy. इससे क्या होगा? गमिट ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा. मतलब वो जो पेनिस से आएगा सीमेन, उसमें सेमाइनल फ्लूइड है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, काउपर्स का सिक्रीशन है, बस उसमें अब नहीं है स्पर्म. और ये क्वेश्चन नीट क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वैसेक्टोमी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वैसेक्टोमी. ऐसे एक बार पूछा था कि विच इज करेक्ट फॉर वैसेक्टोमी. सर इट ब्लॉक द गमिट ट्रांसपोर्ट. सीमेन इज डिवॉइड ऑफ स्पर्म. एक बार पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट फॉर वैसेक्टोमी. एक ऑप्शन vasa differentia are cut and contents are sealed. The semen is without sperms. It is a permanent method of birth control and it stops spermatogenesis. तो कोई संबंध नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस का और उसका कोई संबंध नहीं है. तो vasa differentia is a pair of muscular tube that starts from quadi end of epididymis and it joins to the duct coming from seminal vesicle and forms a ejaculatory duct. It is 30 to 40 centimeter in length. On its way to abdomen, it is supported by spermatic cord or mesorchium. This also houses, म्हणजे या केबलमध्ये अजून असतं ब्लड वेसल्स, नर्व्हजही असतात. Then they transport the sperm from epididymis to urethra via ejaculatory duct. Now, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct. तो देखो हमने एक स्केच बनाया था कि दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा, testis and this is vasa differentia. Now this is seminal vesicle. So vasa differentia and a duct of seminal vesicle, they forms a ejaculatory duct. So ejaculatory duct are short ducts of just 2 centimeter length. So ejaculatory duct are short duct of just 2 centimeter formed by union of duct of seminal vesicle and vasa differentia. It carries, तो sir ejaculatory duct carries seminal fluid
अँड स्पर्म्स टू युरेथ्रा. म्हणजे इजॅक्युलेटरी डक्टमधून काय जातं, तो सेमायनल व्हेसिकलचं सेमायनल फ्लुइड आणि व्हासा डिफरन्शियाने आणलेले स्पर्म इट कॅरीज टू युरेथ्रा. सो दिस इज ejaculatory duct. So ejaculatory duct are the short ducts formed by union of a duct of seminal vesicle and vasa differentia. They are just 2 centimeter. They carry seminal fluid plus sperms to यूरेथ्रा. विच यूरेथ्रा? तो ये कौन सा पोर्शन है यूरेथ्रा का? सर प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. नेक्स्ट, द लास्ट डक्ट इज यूरेथ्रा. अब ध्यान दो, very long, narrow, muscular tube that starts from neck of the urinary bladder and opens to outside the body on glans penis. Long, narrow, muscular tube. कुठून सुरू होते? नेक ऑफ द युरिनरी ब्लॅडर. कुठे उघडते? शरीराच्या बाहेर ऑन ग्लॅन्स पेनिस. या ट्यूबला म्हणतात युरेथ्रा. Second point, male's urethra is 20 centimeter in length. Third point, it has 3 portions: prostatic urethra 2.5, membranous urethra 2.5 centimeter, and penile urethra that traverse through entire length of penis. Penile urethra 15 centimeter. Next, in male, the urethra is called urinogenital duct. Urinogenital duct, and it is a common passage for urine and semen. The male's urethra opens on glans penis by the opening called urethral meatus. म्हणजे लघवीची जी नळी शरीराच्या बाहेर ग्लॅन्स पेनिसवर उघडते, तर त्याचं जे छिद्र आहे त्याला काय म्हणतात? यूरेथ्रल मियाटस. तो ये हो गया यूरेथ्रा, यूरेनोजेनाइटल डक्ट. यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा था? Sorry, I told you, which is a shared terminal duct in male that is common for urinary system and reproductive system. That is a urethra. So this is how we have completed the duct system. Vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct and urethra in detail. Now we will talk for penis. First point, penis is a male copulatory organ. Second, whether the penis is external genitalia or internal genitalia, it is male external genitalia. The penis has 3 parts. Look at the picture. So the proximal expanded part, so anterior expanded part of the penis is called glans penis.
द मिडल, यहाँ से यहाँ तक, द मिडल cylindrical elongated part is called shaft penis, and where the penis is attached to general body it is called root penis. म्हणजे सर आधी तुम्ही म्हणता की हा मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे, म्हणजे पुरुषांचा कॉप्युलेशन किंवा कोएटसचा ऑर्गन आहे. जसं महिलांमध्ये व्हजायना इज अ फिमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, तर तसं मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन इज पेनिस. दिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, बाह्य जननेंद्रिय आहे. दोनच आपण एक्सटर्नल जेनिटालिया सांगितले, स्क्रॉटम आणि पेनिस. आता तिसरा पॉईंट, पेनिसचे किती पार्ट आपण केले, तो सर हा ग्लान्स पेनिस, हा शाफ्ट पेनिस आणि हा रूट पेनिस. सो ग्लान्स, शाफ्ट एंड रूट. तीसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट. अब ये पॉइंट पे ज़रा आप गौर करो, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट. नॉर्मली द पेनिस इज वेरी स्मॉल अँड लिम्प. म्हणजे तसं पाहिलं तर पुरुषाचं जे पेनिस असतं ते अगदीच छोटं असतं आणि सुकलेलं असतं. बट ॲट सेक्शुअल एक्साइटमेंट, when the limbic system activate, sexual emotions comes in a mind. तो वैसे तो पुरुष का पेनिस बहुत छोटा होता है और सिकुड़ा हुआ होता है, पर जब उसके मन में कोई सेक्सुअल भावनाएं आती है तो द पेनिस बिकेम इरेक्ट, हार्ड. उडी, स्टोनी. तो सर तुम्ही म्हणता की तसं तर पेनिस खूप लूज असतं, लिम्प असतं, सुकलेलं असतं, पण जेव्हा सेक्शुअल ॲक्टबद्दल भावना येतात तो त्यावेळी ते इरेक्ट होतं, हार्ड होतं. उडी म्हणजे लाकडासारखं, स्टोनी म्हणजे दगडासारखं होतं. ये कैसे संभव हुआ? उसके लिए हमें सीखनी होगी एनाटॉमी ऑफ द शाफ्ट पेनिस. तब पता चलेगा कि ट्रूली इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. मतलब पेनिस में कोई बोन नहीं है, फिर भी इट इज़ वुडी एंड स्टोनी. सो कैसे? सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो and the blood sinuses present in a erectile tissue get a full of blood, and hence so this penis became erect, it is woody or stony. तो सर आता आपल्याला शिकायची ॲनाटॉमी आणि ती खूप महत्त्वाची आहे, तुम्ही लक्ष द्या. तो मान के चलो कि हम लोगों ने ये जो शाफ्ट पेनिस है इसको कट दिया. तो सपोज आई एम होल्डिंग अ शाफ्ट ऑफ अ पेनिस and it has been given a transverse cut and seen inside. म्हणजे शाफ्टला ट्रान्सवर्स कट दिलंय आणि त्याच्या आतमध्ये बघितलंय. तो याच्या आत काय आहे वो मैं यहाँ पर निकालता. So, inside the shaft, there are 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 3 cylindrical, erectile tissues. म्हणजे सर या शाफ्टच्या आतमध्ये 3 पेन्सिल सारखे सिलेंड्रिकल इरेक्टाईल टिश्यूज असतात आणि त्याच्यामध्ये असतात कॅव्हिटीज म्हणजे सायनसेस ज्याच्यात ब्लड यायला पाहिजे. तो जब कोई सेक्सुअल इमोशन नहीं होता
तब वो साइनसेस में वेरी लेस ब्लड रहता एंड हेंस द पेनिस इज वेरी स्मॉल एंड लिम्प. And when the sexual emotion starts, the sinuses get full of blood. सायनसेस कुठे असतात? इरेक्टाईल टिश्यूमध्ये. इरेक्टाईल टिश्यू किती आहे? 3 आहे. कुठे आहे? शाफ्ट ऑफ द पेनिसमध्ये. अब उनके नाम देखो. द 2 आर डॉर्सोलॅटरल. हे पहा, वर म्हणजे डॉर्सल आणि आजू बाजू. So, 2 dorsolateral tissue are called corpora cavernosa. Corpora cavernosa. And this is a midventral. This is called corpus spongiosum. मतलब सर आपने जो ये 3 उंगलियां हमें दिखाई है तो उसमें से ये डॉर्सोलैटरल कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और ये जो अंगूठा है समझो वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. और ये जो हमने कहा कि यूरेथ्रा जाता है थ्रू पेनिस, पेनायल यूरेथ्रा, वो इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में रहता. तो यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल इरेक्टाइल टिश्यू कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. सुनो, ये जो इरेक्टाइल 3 टिश्यूज है उसमें ब्लड साइनसेस है एंड एट द सेक्सुअल एक्साइटमेंट दे गेट अ फुल ऑफ ब्लड एंड हेंस द पेनिस बिकेम इरेक्ट, हार्ड, ओडी एंड स्टोनी एंड इट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड. इट्स अ रिक्वायरमेंट. अगर ये पेनिस लूज रहेगा, लिम्प रहेगा, तो फिर वजाइना के अंदर इंसेमिनेशन नहीं हो सकता. तो फिर मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा की वेर देर इज अ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन्स, म्हणजे जिथं पेनिस कडक नाही होत तो त्या ठिकाणी मग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आहे. बट वो पार्ट अभी नहीं है, वो अगले चैप्टर में है. तो सो the shaft contain a pair of erectile tissue which is dorsolateral called corpora cavernosa and a midventral called corpus spongiosum. And corpus spongiosum contain urethra. तिसऱ्या टिश्यू मध्ये असते लघवीची नळी. अब आगे देखो अगला पॉइंट. अब यहां तक कॉर्पोरा कैवर्नोसा थे, मतलब वो शाफ्ट तक ही थे. उसके आगे कंटिन्यू है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. मतलब यहां देखो कि ये हो गए कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये सामने आया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. जैसे मान के चलो कि दिस आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये सामने आया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. सो दिस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम म्हणजे तीसरा इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो इट एक्सपांड एंड इट फॉर्म्स द ग्लॅन्स पेनिस. तो सर हा जो ग्लॅन्स पेनिस आहे त्याच्यात फक्त कॉर्पस स्पॉन्जियोसम असतो जी. सो ग्लॅन्स पेनिस कंटेन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, शाफ्ट कंटेन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ये उस शाफ्ट की एनाटॉमी है. और सर आपने कहा कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो क्या चीज़ है? तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड व्हेन समथिंग बिकेम हार्ड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. तो सर पेनिस में बिना बोन के वो हार्ड, वुडी एंड स्टोनी रहता. बट 2 ऐसे मैमल है, सस्तन प्राणी है, जिनके पेनिस में बोन होता है, उसे बैकुलम कहते. वन इज टाइगर, अनदर इज डॉग. आगे देखते हैं. तो हा ग्लॅन्स पेनिस कोणी तयार केला? कॉर्पस स्पॉन्जियोसमने. और इस ग्लॅन्स पेनिस पे एक त्वचा रहती और उस त्वचा को कहते हैं, सो ग्लॅन्स इज कवर्ड विथ
प्रेप्यूस या foreskin. So glans penis is covered with the loose, retractable skin called prepuce और foreskin. और सुनो, ये जो स्किन रहती प्रेप्यूस, उसमें मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती है कॉल्ड ग्लैंड ऑफ टाइसन, और वो सिक्रेट करती है एक ल्यूब्रिकेंट कॉल्ड स्मेग्मा. दैट ल्यूब्रिकेंट इज कॉल्ड स्मेग्मा. आगे सुनो. समटाइम द प्रेप्यूस और foreskin that covers the glans penis is such that the smegma goes on accumulating. म्हणजे कधी कधी ही जी त्वचा असते ग्लॅन्स पेनिसवर ही अशी असते की ती स्मेग्माला वॉश आउट नाही होऊ देत. अँड ॲक्युम्युलेशन ऑफ द स्मेग्मा कॉजेस द रिकरंट इन्फेक्शन्स अँड इट मे लेड टू द CA पेनिस कॅन्सर. अँड हेन्स इन दॅट केस द सर्जरी विच रिमूव्ह दिस प्रेप्यूस, म्हणजे अशा केसमध्ये जिथं स्मेग्मा जमाच राहतो आणि वारंवार इन्फेक्शन्स होतात, तर अशा ठिकाणी CA पेनिस अवॉइड करण्यासाठी ती स्किन कट करतात. और उस सर्जरी को कहते हैं सर्कमसिजन एंड इट इज आल्सो डन फॉर सम रिलिजियस आस्पेक्ट आल्सो. एक धर्माची बाब म्हणूनही केल्या जातं किंवा तो स्मेग्मा जमा नाही झाला पाहिजे यासाठी सुद्धा केल्या जातं. अब देखो कि जैसे स्क्रोटम इन मेल इज होमोलॉगस टू लैबिया मेजोरा इन फीमेल, वैसे ग्लैंस पेनिस इन मेल इज होमोलॉगस टू क्लिटोरिस इन फीमेल. म्हणजे जसं हा जो ऑर्गन ऑफ सेक्शुअल एक्साइटमेंट निसर्गाने पुरुषाला दिलाय, तर तसं महिलांमध्ये जो ऑर्गन असतो त्याला क्लिटॉरिस म्हणतात किंवा सुडोपेनिस म्हणतात. तो सर क्या होमोलॉजी आहे? द फंक्शन इज सेक्शुअल एक्साइटमेंट अँड आल्सो द टिश्यू इज कॉर्पस स्पॉन्जिओसम. म्हणजे पुरुष महिलांमध्ये जो टिश्यू आहे तो सेम आहे आणि इथे जसं प्रेप्यूस असतो तिथे सुद्धा प्रेप्यूस असतं. तो ठीक आहे सर. Penis is a male copulatory organ. It is male external genitalia. It has a glans penis, shaft penis and root penis. Normally it is small, limp, and at sexual excitement it became erect, hard, woody or stony. The shaft of the penis contain 3 rounded erectile tissues and many blood vessels. So corpora cavernosa, the 2 erectile tissue which are dorsolateral. Corpus spongiosum, so is a mid-ventral tissue that contain urethra. So glans penis is entirely formed by corpus spongiosum. It is covered by the loose retractile skin fold called prepuce. The skin glands in prepuce are gland of Tyson. They produce smegma which is a sort of lubricant. अब last but not least function. तो सर एक फंक्शन तो है it carries the urine. दूसरा it is a copulatory organ. तीसरा it is a organ that does insemination in vagina. मतलब पुरुष के पेनिस से ही, इरेक्टेड पेनिस से ही सीमेन महिला के वजाइना में गिरता है. दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. तो ये है फंक्शंस ऑफ पेनिस. अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड.